sunlight filters in, you brush your teeth. The mild base in toothpaste fights bacterial acids, protecting your smile. At breakfast, citric acid in orange juice wakes you up, while lactic acid in sour milk reminds us of chemistry at the table. Hand washing follows, soap's base lifts dirt and germs. Lunch brings tomatoes and greens rich in oxalic acid, and pickles stay crisp with vinegar's acidity. Afternoon snacks, aha, cakes and breads. After school detergents full of bases tackle the dirt in your school uniform, while strong base cleaners unblock the drains. At dinner, tomatoes, lemons, and fizzy drinks brings more acid. And if the stomach acid troubles you, we have antacid bases which bring relief. Let us go through the concept of this chapter quickly. Starting from what are acids. अब acids में आप examples ले लो अपने citrus fruits की. So first thing we know is that they are sour in taste. Second is they turn blue litmus red, and they are proton donors in aqueous solution. Proton donors means they are going to give hydrogen ions when they are in aqueous solution. जैसे आप HCl की एग्जाम्पल ले लो, आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अगर गैशियस स्टेट में है, if it is a gas, because it exists as a gas also, it will not ionize, but only in aqueous solution when it is dissolved in water it is going to give you the ions, hydrogen ions and chloride ion. तो इस केस में आई एम सेइंग दैट इट इज एसिड व्हेन इट इज एन aqueous solution. उसके बाद हम एसिड को कैटेगराइज कर देते हैं एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे जो आपके पास कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे. जैसे HCl की एग्जांपल ले लो आप, कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके H पॉजिटिव Cl नेगेटिव दे देगा आपको. सो विच मीन्स आई कैन अंडरस्टैंड दैट स्ट्रॉन्ग एसिड्स विल ऑटोमेटिकली आर गोइंग टू हैव हायर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस बिकॉज कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है यहाँ पे. वीक एसिड्स जैसे आपका एसिटिक एसिड हो गया. अब एसिटिक एसिड द फॉर्मूला इज CH3COOH. So acetic acid is going to break down but partially. Partial dissociation मतलब completely ionized नहीं होगा. It will break down and it will give you some ions. Certain part of it is going to remain as such as an acid only. The same definition goes for a base. अब acid में मैं H positive की बात कर रही हूँ, base में मैं OH negative की बात करूँगी, hydroxide ions की. तो bases का I know the taste. If you have tasted baking soda or baking powder, baking soda taste it, you will be able to understand that it is bitter in taste. या by chance कभी आपने soaps या shampoos taste कर लिए होंगे तो you know that they are bitter in taste, they are slippery in touch and they are proton acceptors. और I can say that they are going to give the hydroxide ion. जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये completely break down कर जाएगा to give you सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन. एंड इसी के बेसिस पे आपने इसको बोल दिया स्ट्रॉन्ग बेस जो कंप्लीट डिसोसिएशन करेगा. तो ऑफकोर्स द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज गोइंग टू बी मोर इन स्ट्रॉन्ग बेस. वीक बेसिस जैसे आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वो पार्शियली डिसोसिएट करेगा. पार्शियल डिसोसिएट के लिए मैं ये सिंबल यूज करती हूँ, विच मीन्स सम ऑफ इट इज डिसोसिएटिंग and some will not dissociate into ions. So you will get the less concentration of hydroxide in this case. We'll take a quick examples of strong acids and bases. Sulfuric acid, hydrochloric and nitric acid, acetic and carbonic acid. Strong base, sodium, potassium hydroxide, calcium hydroxide. Weak bases में ammonium hydroxide हो गया आपका, copper hydroxide हो गया, iron hydroxide हो गया. All these are examples of your strong and weak acids and bases. Indicators, as the name is suggesting you, they are going to indicate the presence of acid or base. One is either by the color change or by the change of the smell. तो कलर चेंज में आपके पास आ जाएगा, आपके कॉमन किचन सब्सटेंसेस होंगे जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जो नेचर में है, एज द नेम इज टेलिंग यू. लिटमस सोल्यूशन हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज जूस हो गया, बीट रूट जूस हो गया.
we'll do the activity of this also. They are going to show you the change of the color. जैसे litmus solution है आपका, बड़ी interesting बात है कि it is purple color dye which is obtained from the lichens. But इसका color change हो जाता है when you are adding it acid or base to it. That is where you get the red litmus and the blue litmus. अब एसिड में ब्लू लिटमस आपका रेड कलर्ड में चेंज हो जाएगा और बेसिस में रेड कलर लिटमस इज गोइंग टू चेंज इनटू ब्लू इन कलर. सो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर गोइंग टू यूज द इंडिकेटर्स वेदर दे आर नेचुरल और सिंथेटिक. नेचुरल में आपके पास लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया. टर्मरिक में इफ यू विल सी, आपने देखा होगा कि इन केस ऑफ एनी करी स्ट्रेन्स इफ दे आर फॉलिंग ऑन योर शर्ट एंड यू आर वॉशिंग देम विद अ डिटर्जेंट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट येलो कलर ऑफ द turmeric is going to change to red in color, which ultimately when you use lot of soap and water with the cleansing action of soap it gets removed. but वो आप देख सकते हो कि बेस की प्रेजेंस में सोप और डिटर्जेंट इज अ बेस, वो आपका जो टर्मरिक है येलो कलर का वो रेड कलर में चेंज हो रहा है. अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आपके पास आ जाएंगे जो सिंथेसाइज हो रहे हैं लैब में, फिनॉप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज. फिनॉप्थलीन का कलर जो है वो एसिड में ये कलरलेस रहेगा और बेस में इट विल गिव यू अ नाइस पिंक कलर. मिथाइल ऑरेंज एज द नेम इज सजेस्टिंग इट्स ऑरेंज इन कलर. ये मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड की प्रेजेंस में रेड कलर और बेस की प्रेजेंस में इट विल टर्न टू येलो इन कलर. इसके बाद आगे आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं जैसे आपका वेनिला एक्सट्रैक्ट हो गया, क्लोव ऑयल हो गया या अनियन हो गया. दे आर गोइंग टू शो द चेंज इन द स्मेल. एसिड्स में इनकी स्मेल में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बेस की प्रेजेंस में दे विल लूज देयर स्मेल. ये यूज होता है बेसिकली फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. अदरवाइज आपने कॉमन एग्जाम्पल देखी होगी कि अनियन को आप सिरके में रख दो विनेगर में, तो इट डजंट लूज इट्स एसेंस. इनफैक्ट इट गेट्स अ गुड टैंगी टेस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विनेगर इन इट. केमिकल रिएक्शंस. नाउ हाउ एसिड्स रिएक्ट विद द मेटल्स. We'll start with the example which we have done in chapter 1 also. आपने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे और उनको रिएक्ट करवाया था एसिड के साथ. तो जब आपने रिएक्ट करवाया आपको मिला जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस. दैट मीन्स एनी मेटल व्हेन इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद एसिड इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. आपको बस रिएक्टिविटी सीरीज का ध्यान रखना है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज हमने की थी. अगर आपने नहीं रिवाइज की है, गो टू चैप्टर 1, रिवाइज इट फर्स्ट. हाइड्रोजन के ऊपर जो भी एलिमेंट्स होंगे दे आर गोइंग टू डिस्प्लेस इट. सो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. अब ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, हाउ यू आर गोइंग टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ दैट हाइड्रोजन. सो फॉर कन्फर्मेशन वी नो दैट पॉपअप टेस्ट इज देयर. यू आर गोइंग टू ब्रिंग द मैच स्टिक और स्प्लिंटर क्लोज टू दैट हाइड्रोजन गैस. इट विल बर्न विद अ पॉपअप साउंड. ठीक है. इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं हम कि जो हाइड्रोजन बबल्स आपके डिलीवरी ट्यूब से जो द वंस विच आर कमिंग आउट, पास देम थ्रू अ सोप सोल्यूशन. उससे क्या होगा, जो सोप बबल्स फॉर्म होंगे वहां पे आपको ऑब्जर्व करना और इजी होगा हाइड्रोजन गैस को. सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ मैग्नीशियम और एसिड की दे रखी है, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बन गई इसके साथ. ठीक है. अब इसमें क्या है, अगर एसिड्स रिएक्ट कर रहे हैं, मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ, इसका मतलब एक चीज़ क्लियर है कि मेटल्स जो हैं वो बेसिक इन नेचर हैं. बट देर आर सर्टन मेटल्स विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं. दे कैन बिहेव बोथ वेज. ठीक है. आपके पास जैसे यहाँ एग्जाम्पल हो गई, आप दो एग्जाम्पल्स याद रखोगे, जिंक और एल्यूमिनियम इन दिस क्लास. अगर जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इट इज रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम जिंकेट. या अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ NaAlO2, दैट इज योर सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस. तो ये क्लियर हो गया. मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. अब अगर मेरे पास मेटल की जगह होता है मेटल ऑक्साइड, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन की जगह बन गया सॉल्ट प्लस वाटर. H2 की जगह H2O हो गया आपका. मेटल ऑक्साइड जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूंगी, यहाँ पे आपके पास अगेन जिंक एज एन एम्फोटेरिक दिखाया हुआ है कि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है सॉल्ट प्लस वाटर, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है सॉल्ट प्लस वाटर. पर हम एक बेसिक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो हमने लास्ट क्लास में भी की थी. आपको लाइम वाटर टेस्ट पता होगा. व्हाट इज लाइम वाटर टेस्ट. आप कैल्शियम ऑक्साइड लेते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हो, पहले कैल्शियम ऑक्साइड लेके उसको वाटर से पास कराते हो तो आपका स्लेट लाइम बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू पास करोगे, आपके पास अगर ये सोल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का,
इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड, इफ यू आर गोइंग टू पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट, यू विल गेट द कैल्शियम कार्बोनेट. इसको बोलते हैं हम लाइम वाटर टेस्ट. दैट मीन्स जब भी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो आपको मिल्कीनेस दिखेगी, सोल्यूशन मिल्की, थोड़ा वाइट इन कलर दिखेगा, लाइम वाटर टेस्ट. बट अगर मैंने एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया, अब यहाँ पे सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा. सो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप और ऐड करते चले जाओगे तो आपके पास बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 इन विच द मिल्कीनेस इज गोइंग टू डिसअपियर. तो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिए तो मिल्कीनेस, वो जो व्हाइट कलर आया था वो डिसअपियर हो जाएगा. मैं यही एग्जाम्पल लूंगी. आपने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज नथिंग बट अ बेस, बेस को रिएक्ट किया एक नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ. कार्बन जो है वो नॉन मेटल है पीरियोडिक टेबल में भी अगर आप देखोगे, और विद टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर मेटल्स नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो इट इज रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर. इसका मतलब जो मेरे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक इन नेचर होंगे, इसलिए वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. ऐसी मैंने अगर एग्जाम्पल एक आपके पास मेटल ऑक्साइड का लेना हो तो आप कॉपर ऑक्साइड ले लो, वो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, आपको दे रहा है कॉपर क्लोराइड विच इज योर ग्रीन सोल्यूशन प्लस वाटर. ठीक है, इसका मतलब जब भी मेरे पास मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या हुआ, अगर ये एसिड है तो मेटल ऑक्साइड आपका बेसिक इन नेचर होगा, इसलिए वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना. एसिड प्लस एसिड रिएक्ट करके आपको कुछ प्रोडक्ट नहीं देगा, वो मोर एसिडिक हो जाएगा. तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव यू सॉल्ट. और यहाँ से आप इजीली जज कर सकते हो कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. नेक्स्ट रिएक्शन हो गई, ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन होगी मेटल और एसिड की. सेकेंड रिएक्शन हो गई आपकी मेटल ऑक्साइड की. थर्ड रिएक्शन होगी आपकी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की. अब क्या होगा, अगर मेटल ऑक्साइड ना लेके मैंने कार्बोनेट ले लिया, कार्बोनेट जब भी होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा एंड प्रोडक्ट रहेगा ही रहेगा. तो मैंने क्या किया, कार्बोनेट को, एक मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट किया जब भी एसिड के साथ तो क्या मिलेगा मुझे, सॉल्ट तो मिल ही रहा है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा यहाँ पे. अब कार्बोनेट ले लो चाहे बाइकार्बोनेट ले लो, दोनों केसेस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे. क्योंकि क्या होगा, मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे सॉल्ट बनाने के लिए, और हाइड्रोजन और कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए H2CO3, जो अल्टीमेटली आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देगा बिकॉज इट्स अ वीक एसिड. इट्स गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू द आयंस. तो अगर आपने देख लो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो सोडियम सल्फेट बन गया, ये सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ऐसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस H2SO4, तो कैल्शियम और सल्फेट मिल जाएंगे टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट, और हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएंगे टू फॉर्म H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो डिसोसिएट करके आपको वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा. तो कार्बोनेट हमेशा ब्रेक डाउन करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे ही देंगे. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की हम प्रेजेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइम वाटर टेस्ट. नेक्स्ट इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. मेटल्स के साथ रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट किया, एसिड और बेस, ये तो सबसे बेसिक रिएक्शन है. न्यूट्रलाइजेशन इज एसिड और बेस रिएक्ट करेगा टू गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर. HCl प्लस NaOH गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर. यहाँ पे सिर्फ हम एक चीज़ एक्स्ट्रा नोट करेंगे कि जो सॉल्ट आपका बनेगा, जनरली हम बोलते हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहे तो वो न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा. पर अगर एसिड आपका स्ट्रॉन्ग हुआ, अगर मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा है वीक बेस के साथ, तो आपके पास जो सॉल्ट आएगा वो एसिडिक इन नेचर होगा. जो भी इसमें स्ट्रॉन्ग करेक्टर होगा, डोमिनेटिंग सब्सटेंस होगा, उसी की नेचर आएगी आगे सॉल्ट में. ये हम आगे जब सॉल्ट्स की बात करेंगे तो एक बार हम रिवाइज कर लेंगे. विल टेक 2-3 एग्जाम्पल्स ऑफ द टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स. नेक्स्ट इज योर सॉल्ट. अब सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होगी आपके पास. सॉल्ट बेसिकली क्या होता है, आयनिक सब्सटेंसेस जहाँ पे आयन्स का कॉम्बिनेशन है, आयनिक कंपाउंड्स जहाँ पे एसिड बेस रिएक्ट कर रहे, एनायंस एंड कैटायंस आर गोइंग टू रिएक्ट टू फॉर्म द न्यूट्रल सब्सटेंस. आपके पास एग्जांपल्स हो गई टेबल सॉल्ट की, कैल्शियम सल्फेट की, पोटेशियम नाइट्रेट की, विच इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. अब ये आ गया आपके पास एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल सॉल्ट. अगर मेरे पास HCl और NaOH है
तो मैंने क्या करना है, H और OH को हटा देना है, इसके अलावा जो बचा है NaCl, सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे HCl हो गया मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस हो गया मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमने याद किया था स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हम याद रखेंगे HCl, H2SO4, HNO3। 3 एग्जाम्पल्स आप कम से कम याद रखोगे इस क्लास में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एटलीस्ट इतना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद रखेंगे। वीकर बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड याद रख लो आप, या कॉपर हाइड्रोक्साइड याद रख लो, या फेरिक हाइड्रोक्साइड याद रख लो। ये वीकर बेसिस हैं आपके सारे। तो अगर आपके पास वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो H और OH अलग कर लो, इसके अलावा बचा आपके पास NH4Cl प्लस वाटर। तो जो अमोनियम क्लोराइड है आपके पास वो बेसिकली एसिडिक सॉल्ट होगा, बिकॉज उसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है। ऐसे वीक एसिड में आपके पास एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, ये वीक एसिड्स हैं। CH3COH प्लस NaOH, इट विल फॉर्म आपका सोडियम एसिटेट CH3CONA, जो बेसिक सॉल्ट होगा। और वीक एसिड और वीक बेस को हम न्यूट्रल लेके चलते हैं, ऑल्दो इसकी कैलकुलेशंस यू डू इट इन फर्दर क्लासेस। नेक्स्ट इज योर pH। अब pH का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। दिस स्केल वाज गिवन बाय सोरेनसन। और pH जो है आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव होता है। फॉर्मूला -log ऑफ H पॉजिटिव है, बट इसकी कैलकुलेशंस अभी आएगी नहीं आपको। तो H पॉजिटिव याद रखो कि जितनी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा उतना pH की वैल्यू कम। मतलब अगर pH 1 है आपके पास, ये pH 0 है, इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर pH 6 है तो वीक एसिड है। तो जैसे जैसे pH की वैल्यू बढ़ रही है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जा रही है। हाउ यू कैन एडजस्ट द pH टू इंक्रीज द pH, मेक इट मोर बेसिक, यू ऐड मोर ऑफ द बेस टू इट। टू डिक्रीज द pH, ऐड मोर ऑफ द एसिड टू इट। आपके पास स्केल है फ्रॉम 0 to 14 विच यू कैन सी हियर, 7 बीइंग द न्यूट्रल। आप डिस्टिल्ड वाटर लेके चलते हो 7। 0 to 7 की कैटेगरी में आपके पास स्ट्रॉन्ग 0 में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ले लो आप, एज अ कैटलिस्ट यूज होता है ऑयल रिफाइनरीज में। सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, या HCl ले लो जो आपका डाइजेशन में यूज होता है, या कॉफ़ी हो गई, टमाटो हो गया, लेमन हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ये सब आपके एसिड्स में आएंगे, माइल्ड एसिड्स में ले सकते हो आप। और बेसिस की जब मैं बात कर रही हूँ तो बेकिंग सोडा माइल्ड बेस में आ जाएगा आपके पास, या अमोनिया हो गया, या जितने भी आपके क्लींजिंग और वॉशिंग के लिए यूज होते हैं आपके पास सोप्स या डिटर्जेंट्स, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ योर बेसिस। नाउ दिस इज अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशंस। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन की जब मैं बात करती हूँ तो इलेक्ट्रिक करंट कब पास होगा, जब आयंस, कंडक्टिविटी इज ऑल बिकॉज ऑफ द आयंस। अभी हमने किया था कि जो एसिड्स हैं और अल्कलीज हैं। अब अल्कली और बेसिस में क्या डिफरेंस है बेटा? अल्कलीज वो हैं बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। आपके पास कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, ये इस वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इसलिए इनको आप अल्कलीज नहीं बोलोगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सॉल्युबल होंगे वाटर में, तो इनको आप अल्कलीज बोलते हो, एंड दे कैन इजिली जनरेट द आयंस। तो जहाँ पे भी आयनाइजेशन होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इजिली कंडक्ट हो जाएगी, सो दे कैन इजिली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज द रीजन that they will conduct the electricity, whereas they have given you 2 examples in NCERT, one is of glucose and second is of alcohol. ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते बिकॉज ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, they do not generate ions, they are covalent in nature, they will not form any ions and therefore they do not conduct any electricity. Next is all applications of pH. अब मुझे पता है कि pH जो है हमारा नॉर्मली pH will move in this range in human body, 7 to 7.4 की रेंज में आपकी बॉडी नॉर्मली वर्क करती है। बट उसके आगे की कंडीशंस जो है वो इट कैन कॉज मोर ऑफ द एसिड कंटेंट और अल्कलाइन कंटेंट इन द बॉडी, सो बॉडी विल नॉट फंक्शन और द एंजाइम्स ऑफ द बॉडी विल नॉट फंक्शन इन दैट कंडीशन। ऐसे आपके पास ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हो गई। एसिड रेन का इम्पैक्ट है, आपकी जो एक्वेटिक लाइफ होगी आपकी वो सफ़र करेगी बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन द pH। या अगर मैं pH की बात करूँ तो हमें पता है हमारी बॉडी में HCl प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया व्हेन यू, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल। पीपल गेट अल्सर्स बिकॉज द पुअर लाइफ स्टाइल इज देयर, यू टेक लॉट ऑफ स्पाइसी फूड। तो उससे क्या होता है, जब स्पाइसी आप ज़्यादा ले रहे हो तो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी बॉडी टू डाइजेस्ट इट,
it leads to excess acid will lead to indigestion that cause that burning sensation in the body. उसको रिलीफ देने के लिए आप यू हैव टू टेक द माइल्ड बेसिस, और माइल्ड बेसिस आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप बेस ले रहे हो ताकि वो एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर सको, जिसको आप एंटासिड्स बोलते हो. सो इट इज ऑल फॉर रिलीफ, गिविंग यू दैट रिलीफ. टूथ एक इज और टूथ डिके इज कॉज्ड बिकॉज आपका जो माउथ का पीएच लेवल है वो ड्रॉप कर जाता है 5.5 से नीचे, बिकॉज एक्सेस ऑफ शुगर, एक्सेस ऑफ फूड डिग्रेडेशन, द बैक्टीरियाज आर गोइंग टू अटैक, दे विल प्रोड्यूस मोर ऑफ द एसिड इन द माउथ. तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक द ब्रश आवर टीथ. टूथपेस्ट इज अ माइल्ड बेस. टूथपेस्ट में फ्लोराइड प्रेजेंट होता है आपके पास, माइल्ड बेस की तरह एक्ट करता है. बेसिक नेचर होने के कारण इट इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ द एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स ऑफ द शुगर इन योर माउथ. इसलिए एडवाइस किया जाता है कि आप हमेशा ब्रश करके, रात को भी ब्रश करके सोएं एंड सुबह उठ के भी ब्रश करें, सो दैट इट प्रिवेंट्स योर टूथ डिके. ये सब बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं पीएच की जो हमें पता है बेसिकली. हनी बी स्टिंग, नेटल स्टिंग, अब जब भी स्टिंग होता है तो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसको आप मिथेनोइक एसिड भी बोलते हो, HCOH. और इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, आप कोई भी बेस लगा लो, बेकिंग सोडा लगा लो. आपने देखा होगा, यू वुड हैव सीन एट योर होम की मेटल्स रगड़ते, कोई लोहे की चीज़ लेके उसको रगड़ना शुरू कर देते. क्यों? क्योंकि मेटल्स बेसिक इन नेचर होते हैं. हमने भी किया रिएक्शंस के थ्रू. एम्फोटेरिक मेटल्स को छोड़ दो, जनरली मेटल्स आर बेसिक इन नेचर. तो इसलिए बोला जाता है कि लोहा रगड़ो या नाइफ रगड़ो या बेकिंग सोडा रगड़ो, बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर. आप उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हो. So essential industrial chemicals. What is more important here is that sodium chloride, that is your table salt, is used as a raw material for all these preparation methods. Baking soda, washing soda, your caustic soda, इन सब की preparation में काम आएगा आपका sodium chloride. Caustic soda, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि caustic word मैं यूज़ करती हूँ जहाँ पे भी concentrated base होगा. जैसे concentrated acids आपके लिए हार्मफुल होते हैं, उसको हम कोरोसिव नेचर बोलते हैं. ऐसे कंसनट्रेटेड बेसिस के लिए हम कॉस्टिक वर्ड यूज करते हैं कि दे आर कॉस्टिक इन नेचर, दैट्स दे आर डेंजरस. कॉस्टिक मीन्स कंसनट्रेटेड. तो दिस इज अनदर नेम ऑफ योर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो, कॉस्टिक सोडा. अब इसमें आपने क्या किया, क्लोर अल्कली प्रोसेस, एज द नेम इज सजेस्टिंग यू. दैट मीन्स यू विल गेट द क्लोरीन एंड यू विल गेट द अल्कली एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स. दैट्स वाई द नेम इज क्लोर अल्कली. अब इसमें आपने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है ब्राइन सोल्यूशन की. ब्राइन सोल्यूशन जो है वो आपका सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है. उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पास किया. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब जैसे आपने ये ब्राइन सोल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पास किया तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा. Na पॉजिटिव, NCl नेगेटिव, वाटर H पॉजिटिव एंड देन OH नेगेटिव. तो इसमें क्या होगा, आपके पास दोनों आयंस sodium positive and H positive are going to compete to move towards the negative electrode. ऐसे ही क्लोराइड और आपका हाइड्रोक्साइड आयंस जो होगा वो दे आर गोइंग टू कम्पीट. सो इस कंपटीशन में क्या होगा आपके पास कि अल्टीमेटली आपका सोडियम और हाइड्रोक्साइड रह जाएगा नीचे सोल्यूशन में. अगर आप देखोगे तो आपका जो क्लोराइड आयंस है दे आर गोइंग टू रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन विच इज एट एनोड. एनोड हो जाएगा आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जो आपका नेगेटिव आपके पास पॉजिटिव आयन होंगे दैट इज H पॉजिटिव. इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज एट कैथोड. कैथोड इज योर नेगेटिव इलेक्ट्रोड. तो हम याद रखेंगे इस केस में कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है हमारा वो कैथोड है और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है हमारा वो एनोड है. ठीक है. और इसमें व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट हियर इज कि आपके पास जो पीछे रह गया वो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव रह गया सोल्यूशन में. सो दैट इज वाई यू विल गेट द सोडियम हाइड्रोक्साइड. दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज गोइंग टू मूव आउट विद द ब्राइन सोल्यूशन. इट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, brine containing the sodium hydroxide will be taken out from the solution. तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है आपका जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल, जो आप आगे जाके नेक्स्ट क्लासेस में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करोगे कि आयंस में कंपटीशन हो रहा है कि दोनों आयंस में से कौन पहले पहुँचेगा. क्लोराइड विल रीच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस एट एनोड, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज लेफ्ट बिहाइंड. तो आपके पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस
मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी से पास करोगे तो यू विल गेट NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। अब इसके अपने अपने यूजेस होंगे। आपके पास क्लोरीन स्विमिंग पूल्स में, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स जो आपकी PVC की पाइप्स आती हैं घर पे, वाइट कलर की पाइप्स होती हैं, उसमें यूज़ होता है। पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है, ब्लीचिंग एजेंट्स एज यूज़ होता है क्लोरीन। हाइड्रोजन आपका इट इज़ यूज्ड for it's one of the green fuels, so it is used as a fuel. It is used for making the fertilizers for formation of ammonia. अब ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन कैसे होगी? आपका जो क्लोरीन बना था लास्ट प्रोसेस में, क्लोर अल्कली में, क्लोरीन को रिएक्ट करेंगे हम ड्राई स्लेक्ट लाइम के साथ। इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन, विल रिमेंबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 गिव्स यू कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, प्लस वाटर। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या हैं? आपका यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर फॉर ब्लीचिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, एज डिसइंफेक्टेंट यूज़ होता है, अपनी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है फॉर ब्लीचिंग द वुड पल्प इनटू द पेपर। Baking soda. Now baking soda, as the name is telling you, it is used for the baking purposes, for preparing cakes, fluffy cakes, crispy pakoras, for fastening the process of cooking, for making bhaturas. जितने भी आपके बेकिंग पर्पसेस हो गए, आपके बिस्किट्स हो गए, बेकरी का सामान हो गया, जहाँ पे भी फ्लफीनेस होगी, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बेकिंग सोडा, फॉर बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट। अब बनता कैसे? ये सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू। सॉल्वे प्रोसेस में क्या करोगे आप? सोडियम क्लोराइड लोगे, उसको पास करोगे अमोनिएटेड टावर के थ्रू, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के थ्रू, एंड इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन हम याद रखेंगे बेटा। सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आपने, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हो गया, आपने देखा होगा घर पे बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर पड़ा हुआ, इसको आपने जब हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट मिला आपको, वाटर मिला, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, दिस इज द रीजन फॉर मेकिंग द योर बेकरी प्रोडक्ट्स फ्लफी इन नेचर। द बेटर ऑफ इट राइजेस, इंस्टेंट इडलीज, ऑल रीजन। आप इनो यूज कर रहे हो तो इनो में भी यू हैव अ मिक्सचर ऑफ, यू आर गेटिंग अ बेकिंग सोडा एंड ऑफ कोर्स एडिबल एसिड अलॉन्ग विथ इट। या फिर ये काम आ सकता है एज एन एंटासिड, और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स, जहाँ पे बेकिंग सोडा और एसिड का मिक्सचर होता है बेसिकली। द मोमेंट यू पुल द नोजल, बोथ ऑफ देम मिक्स टुगेदर रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इसके यूजेस हो गए। अब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है? बेकिंग सोडा जो है आपका वो बेसिक इन नेचर है, जबकि बेकिंग पाउडर जो है दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड एन एडिबल एसिड। कोई भी एसिड, टार्टरिक एसिड टाइप, माइल्ड एडिबल एसिड्स जो खाए जा सकते हैं, उसको जब आपने मिक्स किया एसिड को, तो आपने बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर दिया। सो दैट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल इन टेस्ट। बेकिंग सोडा थोड़ा स्लाइटली बिटर इन टेस्ट होगा, और बेकिंग पाउडर आपका इट विल नॉट कैरी एनी बिटरनेस विद इट, although both of them are used for the baking purposes. So इसके uses हो गए। Soda, known for its cleaning action, is basically extracted from the Solvay process. अब ये Solvay process हमने पिछली स्लाइड में भी किया है। That is when you talk about the preparation of baking soda. आपने क्या किया? आपने अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन ले लिया और उसको कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू पास कर लिया, कार्बोनेशन टावर के थ्रू। दैट इज वेयर यू विल गेट द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप इज सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके हमें सोडियम कार्बोनेट मिला, और सोडियम कार्बोनेट को अगर आप रिक्रिस्टलाइज करते हो, अगर आप वाटर के साथ मिक्स करते हो, तो दैट इज वेयर इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। Na2CO3 plus 10 water molecule will give you Na2CO3.10 water molecule. That is sodium carbonate decahydrate. Deca मतलब 10 water molecules. तो this is the water of crystallization. Water of crystallization का मतलब होता है how many water molecules are present in one formula unit. That is how you define water of crystallization. अब ये अल्कलाइन होगा, बहुत अच्छा क्लींजिंग एक्शन होगा इसका। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर दोनों में यूज़ हो जाता है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट विच रिमूव्स द परमानेंट हार्डनेस ऑल्सो। तो आपका वाटर सॉफ्ट हो, हार्ड हो, दोनों में क्लींजिंग एक्शन दिखेगा आपको वॉशिंग सोडा का।
हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर. जैसे आपका सॉल्ट रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है बिकॉज सॉल्ट में मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, दैट इज़ द रीज़न. सो वाटर सॉफ्टनिंग और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो जाएगी इसकी. इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, सोप इंडस्ट्रीज में बोरेक्स की प्रिपरेशन में यूज़ होता है. जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस. अब जिप्सम जो है आपके पास कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. इसको क्या करते हो आप, इफ़ यू आर गोइंग टू हीट इट एट 373 केल्विन. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 373 केल्विन मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस. अगर आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो then it is going to form plaster of Paris which is calcium sulfate hemihydrate. Hemi क्यों, क्योंकि half water molecule है. Hemi मतलब half, hemisphere like you say, right? So calcium sulfate half water molecule plus 1.5 water molecule is going to be left in this. पर इसी जिप्सम को अगर आप 373 केल्विन से ज़्यादा हीट कर दोगे तो ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है, विच मीन्स इट इज गोइंग टू फॉर्म द एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट. दिस रिएक्शन इज नॉट देयर इन योर बुक्स बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस. अगर मैंने 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट कर दिया इसको तो ये एनहाइड्रस बन जाएगा मेरे पास, कंप्लीटली वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा, जिसको हम डेड बर्न प्लास्टर बोलते हैं. अब प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने देखा होगा वाइट सीमेंट, पीओपीज देखे होंगे आपने, या टॉयज़ में यूज़ होता है या फ्रैक्चर्ड बोन्स को ठीक करने में यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस. सो इट्स बेसिकली अ वाइट पाउडर, वाइट सीमेंट बोलते हो आप इसको. यू हैव टू मिक्स इट विद द वाटर, मेक अ पेस्ट ऑफ इट एंड देन यू कैन यूज इट टू मेक अ शेप ऑफ एनी शेप यू वांट टू, डिजायर्ड शेप यू वांट टू. आपको अगर डेकोरेट करना है, पीओपी सीलिंग्स डेकोरेट करनी है, डिज़ाइंस बनानी है, तो दैट इज़ वेयर इट इज़ यूज्ड. तो इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं, दैट इज ऑन मिक्सिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस विद द वाटर. कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर में अगर आप और 3/2 वाटर मॉलिक्यूल या 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे तो यू विल गेट द जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल. सो दैट रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड बाय मिक्सिंग द वाटर मॉलिक्यूल. इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे, आपके फ्रैक्चर्ड बोन्स करेक्ट करने के लिए. अब एंड ऑफ द चैप्टर में आप देखोगे दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. आपके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस आ जाएंगे. क्लोर एल्कली यूज्ड इन योर इंडस्ट्रीज फॉर सोप्स, फॉर डिटर्जेंट्स, ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स. वाटर ट्रीटमेंट में ब्लीचिंग आपका यूज होता है. ब्लीचिंग पाउडर अदरवाइज भी ब्लीच करने के लिए काम आता है. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्लीच का मतलब होता है डीकलराइज करने के लिए, एंड इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फूड इंडस्ट्रीज में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर आर यूज्ड. आपके वॉशिंग सोडा इज यूज फॉर द लॉन्ड्री पर्पसेस एंड जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस आर यूज फॉर आर्किटेक्चरल फिनिशिंग, फॉर डेंटल मोल्ड्स. सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर. थैंक यू. Bye bye. Let's recap the chapter. So we started the chapter from acids and bases. Acids हमारे पास वो हैं जो हाइड्रोजन आयंस देते हैं और बेसिस वो हैं जो हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशंस. फिर हमने ये देखा कि एसिड्स और बेसिस को हम हाउ वी आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश टू ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स. या तो हम कलर चेंज या फिर स्मेल चेंज के थ्रू देखेंगे. स्मेल चेंज के थ्रू देखेंगे तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो जाएंगे, जैसे आपका वनीला एक्सट्रैक्ट, अनियन एक्सट्रैक्ट हो गया या क्लोव ऑयल हो गया, जो कि बेसिस में अपनी स्मेल लूज कर देंगे. और कलर चेंज में अगर हम बात करेंगे तो सिंथेटिक एंड आपके नेचुरल इंडिकेटर्स आ जाएंगे विच आर गोइंग टू शो यू द चेंज इन कलर. अब इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर हो जाता है इंपॉर्टेंट, जो विच इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स. सो उसमें हम 3 कलर्स याद रखेंगे. ग्रीन इज फॉर द न्यूट्रल ऑन यूनिवर्सल इंडिकेटर. द शेड्स ऑफ रेड इज फॉर एसिडिक, मतलब अगर आप येलो से ऑरेंज से रेड की तरफ जा रहे हो तो एसिडिक. येलो माइल्ड एसिड एंड देन रेड ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग एसिड. ऐसे ही शेड्स ऑफ ब्लू की तरफ बेसिक में जाओगे आप, ब्लू माइल्ड बेस हो सकता है और पर्पल जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा. अब नेक्स्ट इज कि अगर मुझे एसिड बेसिस पता है तो इनकी स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगी. पीएच. पीएच इज गोइंग टू टेल यू द स्ट्रेंथ ऑफ द. पीएच मीटर पे भी आपके पास पीएच स्केल में भी 7 न्यूट्रल स्केल हो जाएगा, 0 to 7 एसिडिक, जिसमें जितना पीएच स्केल कम होगा उतना आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. द वैल्यू ऑफ पीएच इफ इट इज लोअर इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड. और आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में वेयर दे गिव यू द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पीएच. और बेस में जब मैं 14 की तरफ जा रही हूँ, 7 to 14 की तरफ, तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा. तो 14 स्ट्रॉन्ग बेस, 10 माइल्ड बेस ले सकते हो आप. ऐसे पीएच स्केल हो गया आपके पास. ठीक है. इसके बाद बिफोर डूइंग द केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर मुझे एसिड को डाइल्यूट करना हो तो क्या होगा. डाइल्यूशन के टाइम पे सी आइदर यू हैव टू टेक द एसिड एड वाटर टू इट,
और यू हैव टू टेक द वाटर एंड ऐड एसिड टू इट। अगर आप एसिड लेते हो और उसमें वाटर ऐड करते हो तो इट कैन बी वेरी वेरी एक्सप्लोसिव इन नेचर। एक तो लोकल हीटिंग बहुत हो जाएगी, आपका बीकर हीट हो जाएगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एसिड स्प्लैश कर सकता है, सो इट्स वेरी रिस्की। तो हम क्या करते हैं, हम वाटर लेते हैं और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करते हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप बिकॉज जितना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे विच इज गोइंग टू बी जनरेटेड इट विल बी कंपनसेटेड विद इन द बीकर ओनली। ठीक है, नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत इजी प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ 5 रिएक्शंस याद रखोगे आप। पहले मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, देन वील सी द बोर्ड। आपने क्या करना है, जब भी आपका मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, बेटा एक बॉटम लाइन याद रखेंगे कि जो एसिड और बेस है वो जब भी रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे। इसका मतलब जो भी सब्सटेंस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है वो श्योरली बेसिक इन नेचर होगा, या अगर सब्सटेंस बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो श्योरली एसिडिक इन नेचर होगा। ऐसा नहीं होगा कि एसिड और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं और सॉल्ट बना रहे, इट इज इम्पॉसिबल। इट कैन ओनली रिजल्ट इन मेकिंग इट मोर एसिडिक बट इट कैन नॉट मेक अ सॉल्ट आउट ऑफ इट। ठीक है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं सॉल्ट बनाने के लिए, ये एक बॉटम लाइन याद रखेंगे। अब जब भी मेटल और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब वो मेटल की नेचर क्या हुई, बेसिक इन नेचर, बिकॉज वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ऑल मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, लिविंग फ्यू एक्सेप्शंस जो एम्फोटेरिक होते हैं, जो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों दिखा सकते हैं। ठीक है, सेकंड हो गया आपका, अगर मैंने मेटल की जगह मेटल ऑक्साइड ले लिया तो क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड की मैंने, इसका मतलब सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड कर दो, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। अगर मैंने मेटल ऑक्साइड की जगह मेटल कार्बोनेट ले लिया तो जहां भी कार्बोनेट्स होगा वहां हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब भी रिएक्ट करेंगे इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देन नेक्स्ट इज योर, आप नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स ले सकते हो, हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद द बेस। एंड लास्ट इज एसिड प्लस बेस रिजल्ट इन सॉल्ट एंड वाटर, दैट्स इट। अब एक बार बोर्ड पे देख लेते हैं। मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। इसका मतलब इस मेटल की नेचर क्या हुई, ये बेसिक इन नेचर हुआ, इसलिए एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट देगा। ऑल मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, इसलिए हम बोलते हैं जब यू नो व्हेनेवर अ वास स्टिंग्स, हम बोलते हैं कि एसिड बिकॉज इट रिलीजेस द एसिड, तो आपको बोला जाता है कि नाइफ या फिर लोहे को यूज करो और उसको वहां उस प्लेस पे यू हैव टू स्ट्राइक ऑन दैट, आपको रगड़ना है लोहे के साथ, क्योंकि लोहा जो है वो बेस है। ऑल मेटल्स ही पढ़ रहे हो, ऑल मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। अब इसमें एक एक्सेप्शन याद रखेंगे हम कि जिंक और एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। एम्फोटेरिक मतलब वो एसिड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और वो बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। नाउ व्हेन दे आर रिएक्टिंग विद द बेस दे आर एक्टिंग एज एसिड्स, राइट। तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा। सेकेंड, मेटल की जगह मेटल ऑक्साइड अगर रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा मुझे, as you can see in this example of copper chloride. Third is your base is reacting with non-metallic oxide. तो बेटा यहाँ पे मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर हुआ, इसलिए एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर होगा, इसलिए वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो बेस के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक इन नेचर विल रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये आपका एक कॉमन रिएक्शन है जिसको हम लाइम वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे या आप सोल्यूशन ले लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें एक्सेल करोगे एयर, एक्सेलेशन पे आप कार्बन डाइऑक्साइड यू आर गोइंग टू एक्सेल इट, सो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देयरफॉर द सोल्यूशन अपीयर्स मिल्की, मिल्कीनेस आनी शुरू हो जाती है, व्हाइट कलर का सोल्यूशन दिखना शुरू हो जाता है आपको। नेक्स्ट इज मेटल कार्बोनेट्स। अब ऑक्साइड की जगह जब मैंने कार्बोनेट ले लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आपने एग्जाम्पल ले लिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड HCl गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट इज एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ये तो सबको पता है। HCl प्लस NaOH गिव्स यू NaCl प्लस वाटर। सो दैट्स इट फॉर योर रिविजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। लेट अस रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ द सॉल्ट्स। अब इसमें से 100% आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो 5-6 रिएक्शन है, हम याद कर लेंगे इसको। बेसिक चीज इसमें याद रखनी है बेटा कि जो टेबल सॉल्ट है आपका सोडियम क्लोराइड है, वो रॉ मटेरियल यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जो क्लोर अल्कली प्रोसेस है। अब क्लोर अल्कली, व्हाई द क्लोर अल्कली प्रोसेस? बिकॉज इट इज व्हेन यू आर यूजिंग अ ब्राइन सोल्यूशन इट इज रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एंड अल्कली। अल्कली मतलब वाटर सॉल्युबल बेसिस, जो भी बेस वाटर में सॉल्युबल होगा उसको अल्कली बोलेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो नहीं सॉल्युबल होंगे वो बेसिस होंगे, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड।
हमने क्या किया यहाँ पे, ब्राइन सोल्यूशन लिया। ब्राइन मतलब आपका कंसंट्रेटेड एक्व सोल्यूशन ऑफ द टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट लिया, उसका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनाया वाटर में मिक्स करके, उसको बोल रहे हो ब्राइन सोल्यूशन। उस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को या ब्राइन सोल्यूशन को जब आपने इलेक्ट्रिसिटी से पास किया तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द आयंस, बिकॉज यू नो दैट दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड आयनाइजेशन विल अकर। तो इसमें आयंस बन जाएंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसी वाटर के भी आयंस बन जाएंगे H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब क्या होगा, इन आयंस में आपस में कंपटीशन होगा कि कौन सा आयन पहले इलेक्ट्रोड के पास पहुंचे। डिपेंडिंग ऑन देयर यू विल टॉक अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन हायर क्लासेस। अभी के लिए समझते हैं कि जो क्लोराइड है वो पहले पहुंच जाएगा आपके एनोड के पास, विच इज योर पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। तो देयर बाई क्लोराइड विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एट एनोड। ऐसे हाइड्रोजन और सोडियम में हाइड्रोजन पहले पहुंच जाएगा कैथोड के पास, विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, thereby resulting in formation of hydrogen at cathode। तो हाइड्रोजन गैस मिल गई आपको कैथोड पे, क्लोरीन गैस मिल गई आपको एनोड पे, और जो बचा आपके पास सोडियम और हाइड्रोक्साइड वो मिक्स मिलके आपके पास नीचे सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देंगे, दैट इज योर कॉस्टिक सोडा। सो ब्राइन सोल्यूशन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। सेकेंड है ब्लीचिंग पाउडर। अब जो क्लोरीन आपके पास यहाँ मिला था, इस क्लोरीन को अगर आप ड्राई स्लेट लाइम के साथ रिएक्ट करवा देते हो, दैट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, या इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोल देते हैं, विच इज योर, दिस इज योर ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। इसके यूजेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज फॉर ब्लीचिंग द टेक्सटाइल्स, द मटेरियल्स इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज योर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा नाम से पता लग रहा है यूज होगा बेकिंग के लिए, बेकरी प्रोडक्ट्स में, बिस्किट्स में, क्रिस्पी पकौड़ाज में, भटूराज में आप यूज करते हैं उसको, टू गेट दैट फ्लफीनेस एंड सॉफ्टनेस। ठीक है, अब बेकिंग सोडा बेटा बनता कैसे है? सबसे पहले आपने अमोनिएटेड ब्राइन लेना है। ब्राइन मतलब NaCl और वाटर, अमोनिएटेड मतलब अमोनिया भी होगा, तो NaCl प्लस वाटर प्लस अमोनिया, इनको आप कार्बोनेशन टावर के थ्रू पास करोगे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे। ब्राइन प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स यू बेकिंग सोडा, विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब ये बेकिंग सोडा मैं किसी सब्सटेंस में डालती हूँ और उसको हीट करती हूँ, तो ऑन हीटिंग क्या होगा, आपके पास सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है आपके फ्लफीनेस या सॉफ्टनेस या स्पॉन्जीनेस ऑफ केक्स या बिस्किट्स या बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट है आपका, अगर आप मुझे बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाना हो तो क्या करूंगी मैं, बेकिंग सोडा जो है वो एक बेस है, तो उसमें स्लाइटली बिटर एंड टेस्ट रहेगा, इसमें मैं ऐड कर दूंगी एडिबल एसिड। तो आपने बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड ऐड कर दिया, दैट इज योर एडिबल एसिड। अब मुझे ये रिएक्शन पता है, रिमेंबर द रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट्स एंड एसिड विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे भी जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द फ्लफीनेस एंड द स्पॉन्जीनेस। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का काम होता है वॉशिंग में, लॉन्ड्री पर्पसेस में, डिटर्जेंट्स में। ये आपको कहां से मिलेगा, ये सॉल्वे प्रोसेस के ही पार्ट्स हैं। आपने जो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लिया था उसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर, तो 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएंगे इसमें। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या था, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे एक फॉर्मूला यूनिट के साथ। अब इसमें एनसीईआरटी में और एक्टिविटी दे रखी है जहां आपको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की बात की गई है, दैट इज अ ब्लू कलर्ड सॉल्ट। आप ड्राई सॉल्ट ले लो, उसको हीट कर लो, वो एनहाइड्रस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एनहाइड्रस मतलब जिसमें कोई वाटर नहीं रहेगा, तो इसका जितना भी वाटर मॉलिक्यूल होगा वो आपको टेस्ट ट्यूब के सराउंडिंग में, अराउंड द टेस्ट ट्यूब्स दिख जाएगा, वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स में। लास्ट इज योर जिप्सम एंड पीओपी। अब जिप्सम जो है इसको जब भी आप 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो तो ये आपको इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पीओपी, विच इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्लस रिमेनिंग वाटर विल बी देयर। तो जिप्सम को पीओपी में चेंज किया जा सकता है, और ये पीओपी जो है जिसको आप व्हाइट सीमेंट बोलते हो, व्हाइट पाउडर होता है, जब इसको पानी में मिलाओगे ये रिवर्स हो जाएगा रिएक्शन, इट विल बिकम अ पेस्ट एंड देन यू कैन यूज इट फॉर द आर्किटेक्चरल पर्पसेज। ये आपकी फॉल्स सीलिंग हो गई, डेकोरेटिव पर्पसेज के लिए यूज हो जाता है, टॉयज बनाने के काम आ जाता है, फ्रैक्चर्ड बोन्स ट्रीट करने के काम आ जाता है ये। बट जिप्सम को अगर 373 केल्विन से ज्यादा आपने हीट कर दिया तो एनहाइड्रस फॉर्म ले लेगा, विच इज डेड बर्न प्लास्टर एंड इज ऑफ नो यूज, which means the temperature is very, very important. It's very important for you to mention the temperature here. So that's it for the salts.